Maniyar. We are into direct tax, CA inter. We just started with the basic concepts. Basic concept में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? Tax का meaning. What is tax? It is inflow for government, outflow for us. It is like a fees. Why government charge tax? For development, for education purpose, health, defense, etc. Types of tax: direct tax and direct tax. It is charged on persons' income and wealth. Indirect tax on goods and services. Direct tax incidence cannot be passed. The burden is borne by a person who is paying the tax. Indirect tax, the incidence can be passed. It is borne by a person who finally consumes the goods or services. Direct tax very difficult to collect because people may try to avoid tax, but indirect tax it is more easier to collect compared to direct tax. Example of direct tax are income tax, whereas example of indirect tax are GST. Who has given power to levy tax? Article 5 of Constitution gives right to the any authority which is has right to levy tax, Parliament and Legislative Assembly. Article 246 has a Schedule 7 which has 3 lists: Union list, State list and income tax is in Union list entry 82. Correct? Income tax is governed by 4 things: Income Tax Act 1961, Income Tax Rule 1962, and Circular Clarification, Notification, Finance Bill, Judicial Judgments. Correct? In case of Income Tax Act, it is the main act. Income tax rules gives procedures, valuation rules, etc. Whereas circular clarification, notification, circular clarifications are after the act has been introduced. Finance bill come into existence, CBDT will give some clarification, some meaning, some explanation, some interpretation to the rules. Thereafter, notification is issued by CBDT, central government, state governments, and circular clarifications are mandatory for income tax department but not mandatory for, correct, but in case of notification it is mandatory for all. Judicial judgments, the lower authority to which we can file our appeal is CIT appeals, thereafter ITAT, High Court, Supreme Court. All higher authorities judgment is to be followed by lower authority. No lower authority can contradict higher authority's judgment. Judgment of Supreme Court applicable to all over India. Judgment of High Court applicable only to respective states. ITAT to the respective districts, area, and CIT appeal to their own jurisdiction. If there is a controversy in judgment of Supreme Court, then judgment of largest bench is applicable. But if there are two controversial judgments of the largest bench, then latest in time is applicable. Correct? Thereafter, we had gone to Income Tax Act. Income Tax Act section 1 says about the coverage of act, geographical area, which is all over India, including Jammu Kashmir. Section 2 talks about definition. There are two types of definition: exhaustive, inclusive. Exhaustive definitions gives exact meaning. They start with the word mean, whereas inclusive definitions gives features and they normally start with the word includes or means and includes. All important definition of income tax are inclusive. Thereafter we go to section 4, which is a charging section of the act, which says that income tax, that every person whose total income earned during previous year exceed maximum exemption limit shall be regarded as SSC and tax shall be charged at the rate or rate specified in the schedule to the Income Tax Act. Correct? For the assessment year. Now, first we had gone through the definition of person, which is given in section 2, subsection 31, which says that person include individual, Hindu undivided family, company, partnership firm, AOP, BOI, local authority, artificial and judicial person. Correct? We had seen each and every part of that. I need not discuss each person, but you have understood. Now, after that, we had started with the definition of SSE. SSE is defined under section 2(7). Any person from whom any sum of money, whether by way of tax or interest, is due. It shall also include person for whom computation of income, loss, or refund is going on.
person who is SSE on behalf of other person or deemed SSE. After that, we had seen that any person who is SSE in default, correct? After that, we had gone to assessment year, which is 2.9, which says that assessment year is a financial year starting from 1st April to 31st March. Then we had seen definition of previous year, which is section 2, subsection 34, which says that previous year is the financial year immediately preceding assessment year. In case of new source of income coming into existence, previous year shall start from date of source coming into existence till 31st March. The universal rule is that every previous year, if we earn income in every previous year and we pay tax, we charge to tax, we are assessed to tax in the assessment year. There are exceptions to this rule wherein they says that income can be regarded as earned in the year in which it is disclosed. Section 68, 69, 69 A, B, C, D. Thereafter, there are cases where income is deemed to be, assessment year is deemed to be same as previous year, 172, 174, 4A, 5, correct? Like this we had seen. Yes or no? Everybody, hope you remember. I need to remember, gentleman. नहीं तो पढ़ाऊंगा कैसे, आपको भी याद करना पड़ेगा. पर ऐसा नहीं कि मुझे अभी याद है, मेरे को स्टूडेंट लाइफ में भी टैक्स बाय हार्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आज आप पढ़ो और आज आप बाय हार्ट करो तो आपको याद रहेगा. अगर आप मेरे पढ़ाने के 2-4 दिन 5 दिन बाद खोलोगे तो आपको ऐसे लगेगा हैंड राइटिंग तो मेरी ही है. अभी देखो, आपने अगर नोट्स थोड़ा गौर किया होगा तो मैंने जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने पहले ही बोल्ड में डाला, तो मुझे अंडरलाइन कराने की ज़रूरत ही नहीं है. आपको समझा ये चीज़. प्लस कैसा होता है, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के अंदर कैसा है, अभी आप आज जाके एक बार पढ़ लेना. पढ़ने के बाद खुद बैठ के हैंड रिटन नोट्स बनाना बिना देखे, पूरा याद कर लो, नोटबुक खोलो, लिखना चालू करो जो ऑर्डर में पढ़ा. आपका नोट्स सिंपल लैंग्वेज में अपने आप कन्वर्ट होता है. और बनाने के बाद जहां जहां आपको लग रहा था कि आपको बरोबर नहीं आ रहा, नोट से देखो, रेक्टिफाई करो. समझे? यहां तक समझा? ये पूरा थियरी पार्ट था. बट होप मॉर्निंग लेक्चर यू डिडंट गेट बोर्ड विद द थियरी पार्ट, करेक्ट? नाउ लेट्स मूव अहेड. अभी देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या आ रहा है, लेवी ऑफ इनकम टैक्स. दिख रहा है स्क्रीन पे, लेवी ऑफ इनकम टैक्स. अब ये जो लेवी ऑफ इनकम टैक्स है ना, इस, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, किधर बुलाए खाने के लिए तो मेरे को एड्रेस दे देना, मैं 5:30 के बाद चला जाऊंगा. फोन पे आपको कोई बुलाए डिनर पे, तो ये जो लेवी ऑफ इनकम टैक्स है ये अभी पढ़ने से मतलब ही नहीं, क्योंकि ये है ना पूरे कंप्यूटेशन के बारे में बात करता है. पर आपके स्टडी मैट में दिया है बोल के मैंने इधर डाला है, बिल्कुल समराइज वे में मैंने डाला है. ये है ना, जब टैक्स खत्म होने वाला रहे ना तब पढ़ने का थोड़ा, तो आपको समझने लगेगा. फिर आते हैं हम लोग रेट्स ऑफ टैक्स पे. दिखा नेक्स्ट पेज पे, रेट्स ऑफ टैक्स दिखा आपको? अच्छा, तो अभी जरा अपन लिखेंगे. अब फाइल तो मेरी ही दिख रही है, पेन भी चालू हो गया है. लेट्स स्टार्ट गाइस. जो रिकॉर्डेड और ऑनलाइन देख रहे हैं, एवरीवन, चलो स्टार्ट करें. टैक्स रेट्स. इसके पहले जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, इफ़ यू आर सीरियस इनफ टू मेक हैंड रिटन नोट्स, यू नीड टू लीव अराउंड 10 to 15 पेजेस फॉर दिस. जो अभी तक आपको पढ़ाया मैंने, उसके लिए 10 से 12 पेजेस छोड़ दो. 10 से 12 पेजेस में जो अभी तक पढ़ाया उसकी समरी नोट्स बना लेने का, एंड इससे आप लिखना चालू कर सकते हो अभी, बराबर. नाउ टैक्स रेट्स. अभी टैक्स रेट्स पढ़ने के लिए पहला
स्टेटस ऑफ एसएससी, ये पेज आगे पीछे, अच्छा ये नीचे खींचना पड़ेगा। स्टेटस ऑफ एसएससी, अभी देखो एवरी एसएससी हैज टू स्टेटस, पहले देख लो फिर बाद में लिखना, कोई घाई नहीं है अपने को। एक होता है लीगल स्टेटस, क्या होता है, और दूसरा होता है रेजिडेंशियल स्टेटस। दूसरा क्या होता है, पहला कौन सा स्टेटस है, लीगल स्टेटस, दूसरा कौन सा है, रेजिडेंशियल स्टेटस। नाउ लीगल स्टेटस, व्हाट इज लीगल स्टेटस, एग्जाम्पल इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म एक्सेट्रा, बराबर, ये सब लीगल स्टेटस है। रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब होता है रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट एक्सेट्रा, करेक्ट। अभी यूज ऑफ दिस लीगल स्टेटस, व्हाट इज द यूज ऑफ लीगल स्टेटस, लीगल स्टेटस किस लिए काम में आता है, इट इज यूज्ड टू फाइंड टैक्स रेट, क्या पता करने के लिए काम आता है, ये किस लिए काम आता है, इट इज यूज्ड टू ascertain स्कोप ऑफ इनकम, इसलिए काम में आता है स्कोप ऑफ इनकम, बराबर, मतलब ये स्कोप ऑफ इनकम के लिए काम में आता है, और ये किस लिए काम में आता है, टैक्स रेट के लिए। मतलब इंडिविजुअल HUF इनकी टैक्स रेट अलग होती है, अब किसके हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल है ये किससे पता चलता है, रेजिडेंशियल स्टेटस। तो एवरी एसएससी हैज टू टाइप ऑफ स्टेटस, एवरी एसएससी हैज टू टाइप ऑफ स्टेटस, करेक्ट। अभी हमको क्या पढ़ना है, टैक्स रेट, तो हमारे लिए रिलेवेंट क्या है, हमारे लिए रिलेवेंट क्या है, करेक्ट, correct. So now we need to find tax rates for which legal status is important. हाँ ना, करेक्ट। अच्छा, अभी हमारे पास टैक्स रेट अलग अलग टाइप की होती है। Tax rates. There are two type of tax rates. Number one, default tax rates, and number two, normal tax rates or tax rates when SSE opt out of डिफॉल्ट टैक्स रेट। जब एसएससी किसमें से ऑप्ट आउट करता है, ये देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, बरोबर। अच्छा, डिफॉल्ट का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड डिफॉल्ट? नहीं, डिफॉल्ट मतलब ये हमेशा रहेगा। अपन बोलते हैं डिफॉल्ट सेटिंग, मतलब कुछ नहीं बोला तो ये रहेगा। डिफॉल्ट मतलब बाय डिफॉल्ट बोलते ना अपन, मतलब अगर कुछ नहीं बोला तो क्या एप्लीकेबल रहेगा, ये वाला, करेक्ट। इफ नथिंग इज सेड, if nothing is said, then default tax rate is applicable. Correct? Then default tax rate is applicable. Now, पहले हम देखेंगे tax rate for individuals. किसके लिए देखेंगे?
करेक्ट. Tax rates for individuals. अभी इंडिविजुअल के केस में दो टाइप की रेट है, डिफॉल्ट एंड अदर देन डिफॉल्ट. करेक्ट. सो वी विल गो फर्स्ट फॉर अदर देन डिफॉल्ट. करेक्ट. वो क्या है, थोड़ी अच्छी रेट है. टैक्स रेट्स अदर देन डिफॉल्ट, क्योंकि लास्ट ईयर तक ये डिफॉल्ट होती थी, इस साल से डिफॉल्ट चेंज कर दिया इन्होंने. बरोबर. अदर देन डिफॉल्ट मतलब जिसको ऑप्ट आउट करने के बाद हमको मिलता है. तो मैं डिफॉल्ट वाली नहीं पढ़ा रहा हूँ, डिफॉल्ट वाली बहुत ईजी है. तो डिफॉल्ट वाली के अलावा दूसरी जो है वो पढ़ा रहा हूँ. अगर आप डिफॉल्ट फॉलो नहीं करना चाहते हो तो कौन सी फॉलो करोगे, वो वाली पढ़ा रहा हूँ मैं. अब इसके अंदर टैक्स रेट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल, इज सुपर सीनियर सिटीजन. इंडिविजुअल इज सीनियर सिटीजन. और यहां पे अदर इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, certain AOP, BOI, correct, and artificial and judicial person. Artificial and correct. ये समझा. नाउ इस पे आते हैं हम लोग अभी. सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन. व्हाट इज सीनियर, सुपर सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन? आओ इधर देखो. अभी individual who is resident plus of age above 80 years. Correct. Age above 80 years. यहाँ पे इंडिविजुअल वो इज रेसिडेंट ऑफ एज अबाउ 60 ईयर्स. 60 एंड अबाउ मतलब सिक्सटी ईयर्स एंड अबाउ. करेक्ट. और ये बाकी लोग हो गए, मतलब सुपर सीनियर और सीनियर में आप लोग आ गए और अदर्स में मैं आ गया. बराबर ना. वेरी गुड. ये समझा आपने को. अच्छा, इसमें अभी ध्यान रखने का वो क्या होना चाहिए, और एज यहां पर भी क्या होना चाहिए. बरोबर. अच्छा, अभी एक एग्जाम्पल का जवाब दो मुझे. सपोज एक इंडिविजुअल है, वो नॉन रेजिडेंट है और उसकी एज 82 ईयर्स है. कैन यू से ही इज अ सीनियर, सुपर सीनियर? ही इज अ नॉर्मल. समझे. चल आते इधर. अभी जी, अभी यहाँ पे रेजिडेंट का मतलब रेजिडेंट इन इंडिया. जब हमारे देश की बात करें तो हमारे देश के रेजिडेंट मानेंगे ना हम लोग. तो हमको यूएस का रेजिडेंट से क्या मतलब. करेक्ट. अच्छा, अभी यहाँ आते हैं. अभी इनकम पे टैक्स लगाना है. तो अब ये जगह स्लैब की छोटी है मेरे टैब की, तो मेरा टेबल इस पे बने नहीं, तो मुझे अलग अलग बनाना पड़े. बराबर. तो टैक्स रेट फॉर सुपर सीनियर सिटीजन.
करेक्ट, पहला इनकम फिर टैक्स रेट, करेक्ट। नाउ इनकम अप टू ₹5 लाख, नहीं, बराबर। 5 लाख 1 रुपए से लेके ₹10 लाख तक, 20%, करेक्ट। अबाउट 10 लाख 30%, बराबर। ये किसके लिए हो गया? सीनियर, सुपर सीनियर। अभी फॉर सीनियर सिटीजन, इनकम और टैक्स रेट, बस बस सो मत, ऐसे लग रहा है कि सोने की तैयारी कर रहे हो, आवाज़ें तो ऐसी आ रही है मेरे को। अप टू ₹2,50,000 नहीं है, 3 लाख, 3 लाख रुपया, नील। ₹3 लाख 1 से लेके 5 लाख तक, 5%। 5 लाख 1 से लेके 10 लाख तक, 20%। अबाउट 10 लाख 30%, राइट। अब आते हैं नॉर्मल वाले पे। नहीं, वो फिर आधा कट जाता है ना। ठीक है, लिख लेता हूँ, ये तो कट रहा है। इधर चला गया। मैं ना, इधर क्या, इधर ये बाजू वाला, इधर ये वाला ना। हाँ, जान में जान है मेरी, इसलिए टेक्नोलॉजी इज वेरी डेंजरस। अभी ये नीचे जाए कैसे अभी यार? पक्का? ठीक है, अभी किसके लिए लिखेंगे हम लोग? फॉर अदर इंडिविजुअल्स, HUF, certain AOP, BOI and artificial and judicial persons. Income tax rate up to 2,50,000 nil, 2,50,000 ₹1 to 5 lakh, 5%, 5 lakh about 10 lakh 30%, करेक्ट। अब देखो, अब आपको ये कॉपी करते समय क्या करना है? एज ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये जो पहला स्लैब है इसके नीचे लिखना है, क्योंकि आपके पास तो नोटबुक है, आपका चार्ट तो बड़ा बन सकता है। तो आप क्या करोगे, ये जो पहले वाला ये है, ये इसके नीचे लिखोगे, फिर सीनियर वाला किधर लिखोगे? इसके नीचे लिखोगे, और अदर्स वाला उसके नीचे लिखोगे, फिर अपन इन सबके नीचे से कर्ली ब्रैकेट करके आगे लिखेंगे। ओके, तो अभी आप ये लिखना चालू करो, लाइव वालों भी और रिकॉर्डेड वालों भी। स्टार्ट।
आपको 12-15 पेज छोड़ के लिखने हैं, क्योंकि जो मैंने सुबह पढ़ाया है वो 12-15 पेज लगेंगे उनके नोट्स बनाने के लिए, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो। और अगर आप डैश डैश स्टूडेंट हो, नोट बनाना नहीं चाहते हो, तो फिर ऐसे मैं तो आपकी अच्छे मतलब आप एक दूसरे को गालियां देते हो नीचे जाके, तू डैश डैश, तेरी डैश डैश, मेरी डैश डैश, लाइक दैट। जैसे एक कहावत है, डैश डैश की डैश कभी सीधी नहीं होती है। अभी इसको कोई ऊपर करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, जल्दी से लिखिए सब्जेक्ट।
चलिए स्टार्ट करें, यहां तक हुआ। चलिए अभी आ जाइए इधर। अब ये जो आपने टैक्स रेट लिखी है, ये सब टैक्स रेट के नीचे आप करली ब्रैकेट करोगे ऐसे, पूरे तीनों के नीचे। फिर इसमें से लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A, करेक्ट। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। allowed only to resident individual, correct। maximum rupees 12,500 or amount of tax whichever is less, बरोबर। allowed if net total income is up to rupees 12,500 or amount of tax whichever is less, allowed if net total income is up to rupees 5 lakh। 5 लाख तक अगर नेट टोटल इनकम है तो ही हमें रिबेट मिलेगा, नहीं तो रिबेट नहीं मिलेगा। इज अप टू रुपीज 5 लाख। थोड़ा 5 अच्छे से लिखिए। बरोबर। नेट टोटल इनकम, ये सब शॉर्ट फॉर्म से आपको धीरे धीरे आदत होगी, अभी इतना जल्दी आदत नहीं होगी। एटलीस्ट वी विल टेक सम टाइम टू रिमेंबर दिस। तो अभी लिख के रखो, एनटीआई मतलब नेट टोटल इनकम, बरोबर। फिर एड सरचार्ज, करेक्ट। अब ये जो सरचार्ज होता है ये कैसे होता है, इनकम रेट ऑफ सरचार्ज, अप टू रुपीज 50 lakhs कोई सरचार्ज नहीं, above 50 lakhs up to rupees 1 crore 10% ऑफ टैक्स। 10% ऑफ टैक्स जो होता है वो सरचार्ज होता है, समझे क्या। अपन सम करेंगे सबके ऊपर, अभी तो ये लिखवा रहा हूं ताकि आपको समझे। अबाउ 1 करोड़ अप टू रुपीज 2 करोड़, करेक्ट। तो 15% ऑफ टैक्स। अबाउ रुपीज 2 करोड़ अप टू रुपीज 5 करोड़ 25% of tax, correct। above rupees 5 crores 37% of tax, करेक्ट। अब जो टैक्स आएगा, एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस at the rate of 4% of income tax
एंड सरचार्ज। ये पहले आप सरचार्ज लिख लो। सरचार्ज लिखा आप लोगों ने? ये ऊपर करूं? हेल्थ एंड एजुकेशन से एट द रेट ऑफ 4% ऑफ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। इनकम टैक्स एंड सरचार्ज, आईटी, इनकम टैक्स एंड सरचार्ज। समझाइए? ये जो है ये अदर देन डिफॉल्ट हुआ। ये क्या हुआ? अदर देन, करेक्ट? अभी ये पेज खत्म हो गया क्या? न्यू पेज, वो राइट साइड में है वो। कंफर्म बड़ा होएगा पेज, क्योंकि अभी न्यू पेज। पुनीत को बुलाना पड़ेगा, फोन करता हूँ उसको। बुलाओ बुलाओ। अभी आप यहां तक आप रीड कीजिए पहले, इसके बाद मैं आपको डिफॉल्ट टैक्स लिखाता हूं। आज अपन उतना ही पढ़ेंगे, फिर कल सम्स करेंगे। आज थियरी, फिर कल सम्स, दोनों दोनों मिक्स। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बिना थियरी पढ़े सम भी नहीं कर सकते आप। अकाउंट्स नहीं है कि थोड़ा फिकोलॉजी कर लिया है इसमें। ये फाइल सेव कर दो और नया पेज ऐड कर दो। हाँ, अब नई फाइल का नाम दूँ? ठीक है, चलो गाइस, रीड किया अपन ने। ये कौन सा वाला स्लैब था? अदर देन डिफॉल्ट। हमेशा ध्यान रखो, ये कौन सा था? जब आप मॉड्यूल सॉल्व करोगे ना, मॉड्यूल के हर सब में इंस्टीट्यूट ने लिख के रखा है एसएससी ऑप्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिकीप। एसएससी ऑप्ट आउट ऑफ मतलब ये वाला एप्लीकेबल है। अब हम पढ़ेंगे डिफॉल्ट टैक्स रिकीप। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? डिफॉल्ट टैक्स रिकीप। डिफॉल्ट टैक्स रिकीप, it is same
whether individual is senior citizen or super senior citizen or normal. Correct? Income tax rate up to rupees 3 lakh nil. Next rupees 3 lakh 5%. Next rupees 3 lakh 10%. Next rupees 3 lakh 15%. Next rupees 3 lakh 20%. Above rupees 15 lakh 30%. Yes or no? ये समझा? अब कोई भी होने दो, सब इंडी सबके लिए सेम ही स्कीम है ये, समझे? इसके अंदर से लेस रिबेट if net total income does not exceed rupees 7 lakh. If net total income exceeds rupees 7 lakh and increase in tax is more than increase in income, हाँ, नेक्स्ट ही यानी 3 लाख तक, फिर 6 लाख तक, फिर 9 लाख तक, फिर 12, ऐसे। ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है याद रखने के लिए। पीछे वाले में भी लिख सकते थे अपन, पहला 250, फिर 2, नेक्स्ट 250, नेक्स्ट 5 लाख, अबाउट 10 लाख, पर वहां स्लैब कम थे इसलिए वैसे लिख दिया। यहाँ स्लैब बहुत है तो 3 3 3 5 बार, 15 लाख के ऊपर 30%, बराबर। If net total income exceeds 7 lakh and increase in tax is more than increase in income, excess increase in tax is allowed rebate. अब ये है ना, इसमें नया क्लॉज है। पीछे रिबेट ऐसा नहीं था, पीछे रिबेट ऐसा नहीं था। मैक्सिमम रिबेट रुपीस 25,000 or amount of tax, whichever is less, बरोबर। less rebate if net total income does not exceed 7 lakh, करेक्ट। और ये इसके लिए है कि मैक्सिमम रिबेट कितना मिलेगा, 25,000, और उसके आगे लिखो या नीचे लिखो, आपको जैसा ठीक लगे। अगर 7 लाख से ऊपर रहा इनकम तो भी रिबेट मिलता है, पर थोड़ी दूरी मिलता है, 7,30,000 तक बस। वो अपन सम करेंगे जब ये सब आएगा, आपको एग्जाम्पल कराऊंगा कल जब सम करना है आपको, इसलिए अच्छे से पढ़ के आना। कल आधे सम क्लास में करेंगे, आधे आपको होमवर्क देंगे हम।
Maximum rebate 25,000 or amount of tax whichever is less. ये सम्स के साथ आपको समझेगा, क्योंकि बिना फिगर्स के मैं कुछ बोलूंगा ना समझेगा नहीं आपको। अभी नोट करके इसको ऑर्डर को याद करना है, ताकि कल सम्स करे ना तो चीज पता होनी चाहिए कि ये वाली चीज के बारे में बात कर रहे हैं अपन। कल आपको खाली है ना पता होना चाहिए कि मैं ये समझा रहा हूं, इसलिए आज आपको लिखवाया ताकि आप कल अच्छे से, क्योंकि आज मैं अगर आपको एक हाथ सम करवा भी दिया ना तो भी रात को उल्टा टेंशन आ जाएगा। कल एक साथ बहुत सारे सम करेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, इसके बाद में एड सरचार्ज इनकम सरचार्ज अप टू ₹50 लाख नील। इसके बाद क्या था, यानी अप टू 1 करोड़ लिखूं तो भी समझेगा ना। अभी कितना परसेंट, 10% ऑफ इनकम टैक्स। अब अप टू 2 करोड़ बोलता हूं मतलब 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 2 करोड़ तक, बराबर 15% ऑफ इनकम टैक्स। अबाउट 2 करोड़ 25% ऑफ इनकम टैक्स। अब इसमें ना 5 करोड़ वाला स्लैब नहीं है और इसीलिए ये बेनिफिशियल है। ये लोग लोगों को बोल रहे हैं कि तुम्हें डिफॉल्ट हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसमें सरचार्ज कम है, इसमें टैक्स स्लैब भी देखो 15 लाख के ऊपर 30% है। समझे? वो सब आएंगे आगे। स्लैब अलग अलग है ना, देखो ना उसमें उसमें इंडिविजुअल के लिए अलग अलग था, सीनियर सिटीजन अलग था, सुपर सीनियर अलग स्लैब था। देखो 10 लाख के ऊपर 30% था उसमें। हाँ, इसमें सबके लिए कॉमन है जी। अपने को रिटर्न फाइल करते समय टिक करना पड़ता है कि हम डिफॉल्ट करना चाहते हैं या नॉर्मल। मतलब एक डिफॉल्ट मतलब अगर आपने कुछ टिक नहीं किया तो डिफॉल्ट से कैलकुलेशन होगी अपने आप। हाँ, कुछ नहीं बोला आपने, रिटर्न ऐसी फाइल कर दिया तो ये इसी से कैलकुलेट करेगा। डिफॉल्ट मतलब कुछ नहीं एक्सरसाइज किया तो ये, जैसे अपने मोबाइल में डिफॉल्ट सेटिंग होती है, मतलब आप कुछ नहीं करोगे तो वैसे ही चलेगा। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। आप मोबाइल खरीद के लाते हो तो उसमें देखो पेज वेज सब पहले से डिफॉल्ट सेटिंग है। अब आपको उसके कवर में कुछ और डालना है तो आप कर सकते हो। कैसे? उसमें पिक्चर्स ऐड कर करके, तो नॉन डिफॉल्ट सेटिंग हो जाती है। तो वैसे कुछ नहीं किया तो ये स्लैब एप्लीकेबल रहेगा। इट इज सिचुएशनल, भी पता चलेगा आपको। इतने से मैं थोड़ी बहुत कुछ, बहुत पढ़ना है, उसके बाद समझेगा कि अच्छा है कि नहीं। फिर इसमें ऐड क्या करेंगे हम लोग, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% ऑफ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, बराबर। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पीछे था ना वैसे का वैसे ही सेम, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% ऑफ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। समझाइए। अच्छा, व्हेन एसएससी फॉलोज, एसएससी इज इन डिफॉल्ट टैक्स regime, he is not allowed certain benefits and deductions. He is not allowed certain benefits and deductions. इसमें डिफॉल्ट में। अब मैं आपको एक दो चीजें बताता हूं, आपने ना रियल लाइफ में सुनी होगी। आपके पापा बोलते हैं LIC भरेंगे तो ATC में डिडक्शन मिलेगा। LIC का प्रीमियम भरेंगे तो ATC में मिलेगा, मेडिक्लेम मिलेगा ATD के अंदर। ऐसे देखो आपके घर वाले बोलते होंगे, पापा वगैरह रिटर्न फाइल करने के पहले PPF में पैसा डाल दूं, प्रोविडेंट फंड में डालूंगा तो मुझे टैक्स का बेनिफिट होगा। अगर आप डिफॉल्ट टैक्स स्कीम फॉलो करते हो तो ये कुछ भी नहीं मिलेगा।
अगर आप डिफॉल्ट फॉलो करते हो तो वो LIC प्रीमियम का फायदा नहीं मिलेगा, PPF का फायदा नहीं मिलेगा, समझे? वो सब जैसे जैसे पढ़ेंगे ना वैसे वैसे समझेगा, तो मना इतना टेंशन मत लो, ये टैक्स लैब याद करो ताकि कल सम्स करेंगे अपन, समझे? अगर आप डिफॉल्ट में से बाहर निकलते हो तो आप LIC प्रीमियम भरते हो तो उसका नीचे लेस करने को मिलता है, PPF में पैसा डालते हो तो लेस करने को मिलता है, लेकिन अगर आप डिफॉल्ट में रहते हो तो वो सब बेनिफिट्स नहीं मिलते। अब अरे क्लाइंट आएगा, रिटर्न फाइल कराएगा, तो आप टैक्स कैलकुलेट करके नहीं दोगे उसको? कौन से? वो सब अभी दूर है अपन। पार्ट नॉलेज इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज। अभी आपके पास, अभी समझो आपके पिताजी आपको पूछते आज तेरा टैक्स चालू हुआ, चल मेरी इनकम 5 लाख है, टैक्स बता कितना आएगा, तो 5 लाख तक तो टैक्स है ही नहीं ना कोई, जीरो, बिकॉज डिफॉल्ट रहेगा तो भी और नॉर्मल रहेगा तो भी, समझे? ये कल कैलकुलेशंस करेंगे ना, कल नंबर के साथ, तब समझे। आज मैंने आपको सिर्फ स्लैब लिखा है, ये स्लैब को अच्छे से पढ़ के आना है, क्योंकि ये पढ़ोगे नहीं तो हम कर नहीं पाएंगे। अच्छा, अब इसमें क्या बेनिफिट मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे ये इतना जल्दी नहीं समझेगा, ये पूरा इनकम टैक्स पढ़ने के बाद समझेगा, क्योंकि हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ नहीं मिलेगा, तो अपने को पहले स्लैब याद होना चाहिए, समझे? एवरीबडी कल इतना स्लैब याद करके आएंगे, और ये शीट साथ रखना क्योंकि सम्स इसी में है, भूलना नहीं। और जो आज पहले लेक्चर में पढ़ाया वो सब आप रिवाइज करके नोट्स बना लो तो बहुत अच्छा है, आज ही बना लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है? पूरा CA बोले तो जैसा सर बोलेंगे वैसा, बराबर? चलिए आज की सभा समाप्त। ऑनलाइन